Greetings everyone, welcome to Commerce Classes. So today we'll be understanding Indian Accounting Standard 10 regarding property, plant and equipments. मतलब जो हमारा depreciation है और जो provisions है regarding through which we recognize assets as property, plant and equipment और उनकी आगे जो depreciation की working है, so इससे related accounting standard है IND AS 10. So in this standard what we are to study includes नंबर 1 ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप. मतलब ये स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया एंड व्हाट टाइप ऑफ एसेट्स आर इंक्लूडेड देयर इन, एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द स्कोप, ऑल्सो एक्सप्लेन्स द एसेट्स विच आर excluded out of this. Okay, next is important terms. So in this particular part we will be understanding the important terms like what is depreciation, what is the cost and all other components. Third is recognition of assets under property, plant and equipment. So this accounting standard guides us regarding the assets कि कौन सी एसेट्स प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट में रिकॉग्नाइज होंगी, कौन सी नहीं होंगी. वंस वी नो कि एसेट्स इस कैटेगरी में कौन सी आएंगी, मतलब कब हम इन एसेट्स को पीपीई की कैटेगरी में रखेंगे और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. आफ्टर दैट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड इट्स कंपोनेंट्स, कि कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है एंड व्हाट इज़ एक्सक्लूडेड. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ AS 10, क्योंकि यही बेस बनता है आगे डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का. Then we have two models of providing depreciation as per AS 10, cost model and revaluation model, और इन दोनों की अकाउंटिंग. लाइक टिल नाउ कॉस्ट मॉडल पर आप वर्किंग करते आ रहे हो, एसेट्स की कॉस्ट दी होती है एंड सेम इज़ द बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, और उसी बेसिस पे आप सेल के टाइम पर भी एंट्रीज करते हो. रिवैल्यूएशन इज़ अ मॉडल विच इज़ रिलेटिवली न्यू एंड इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. इसमें आप एसेट्स को रीवैल्यू करते हो और जो उनका फेयर प्राइस है दैट इज़ यूज्ड in the accounting. Then derecognition of assets under PPE. जैसे आप assets को recognize करते हो और depreciation charge करना शुरू कर देते हो, then there comes a time जब आपकी assets PPE में से derecognize हो जाएंगी, मतलब उसके बाद उन पर depreciation या further accounting नहीं की जाएगी. Then this standard also explains important disclosures कि depreciation और assets की cost और recognition से related कौन सी information है which we need to disclose through our accounting statements. So all these are important in AS 10. तो अगर आपको एक short note आता है on the complete AS 10, therein you will be explaining all these things but in a very short form. Like objective you will be giving, scope you will be giving, but important terms आपको इसमें देने की ज़रूरत नहीं होगी. You can directly jump to the recognition of assets under PPE. फिर आप brief में cost का concept और these two models explain करेंगे and then you will move on to disclosures. So इसमें छोटा आपको लिखना होगा, but this standard itself is relevant for various short notes. Like you might be given a short note like AS 10 में कौन कौन सी assets हैं which are not included herein, that is scope, because this outlines the assets which are excluded from AS 10 जिनमें अलग standards है. Similarly you might be given a question on say concept of cost, so this one is relevant. So आपको AS 10 को डिटेल में भी पढ़ना है और इस पर एक शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर करना है. So let us go through the details of all these contents of this AS 10 one by one. See, the basic objective of this standard is to prescribe the accounting treatment for property, plant and equipment so that users of the statements can discern information about the entity's investment in its fixed assets. Right? So the basic purpose is to give the accounting treatment. That means कि आपके जो प्लांट, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट्स है इनमें डेप्रिसिएशन किस तरह से रिकॉर्ड होना चाहिए, व्हाट शुड बी दी प्रोविजंस रिगार्डिंग रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट. सो कौन सी एसेट्स हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट विच इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर टाइम, एंड what are the other rules relating to the accounting for these assets. So ये सब स्टडी करने के लिए हमारा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10. सो मेन इश्यूज़ क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ द एसेट्स, कि कौन सी एसेट्स आप PPE प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में रिकॉग्नाइज करते हैं,
व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट, मतलब कितना इनकी कॉस्ट है और कितना आगे कैरी किया जाएगा, डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड होगा, अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, एंड द इम्पेयरमेंट लॉसेस, जो एसेट्स के डिस्पोजल पे लॉसेस होते हैं उनको किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं. So these are four main things here. Now this is applicable to all kinds of tangible plant property and equipment except number 1, assets held for sale or assets of discontinued operations. क्योंकि इनके लिए we have a separate standard. So if you are holding any asset for sale, मतलब आप उसे as a fixed asset business में नहीं ले रहे हो, ठीक है ना, सो उनको इसमें कंसिडर नहीं करना है. Another is biological assets other than the bearer plants. So जो आपकी biological assets है जैसे cattle stock है, so for those assets we have a separate accounting standard. Again जिसका एक standard अलग से है तो उनको यहाँ club नहीं करने. Assets for exploration and evaluation of mineral resources. Again you have a separate standard for these, and mineral rights and mineral reserves. So जिनके standards अलग अलग हैं उनको यहाँ पे we are not to consider. So it will basically be including property, plant and equipments as the name says, but it should not be held for sale or it should not belong to discontinued operations. It will obviously not include the biological assets and it should not relate to mineral resources, right? The important terms here that we are using is bearer plant. So bearer plant is a living plant which is being used for the production and supply of agricultural produce. It is expected to bear produce for more than one period, and इट हैज़ अ रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. तो आप प्लांट नहीं सेल करते हो, इसका जो फ्रूट आता है उसको सेल करते हो. सो प्लांट विल बी देयर फॉर अ काउंटिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर. ठीक है. कैरिंग अमाउंट होता है कि किस अमाउंट पे आप एसेट को आगे कैरी करोगे मतलब आप उसको आगे बुक्स में किस अमाउंट पर दिखाते हो. सो इट इज़ यूजुअली कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. नाउ कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पेड or the fair value of the asset that you have paid to acquire this. And in case construction कर रहे हो आप asset की, जैसे many a times we have building being constructed, so cost of construction will be considered as the cost of the asset. Okay. Then depreciable amount is that part of cost of the asset which will be depreciated over its useful life. So it is the cost of the asset less of the residual value. Now depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of the asset over its useful life. So if your asset is having say cost of 1,10,000, you bought this asset for 1,10,000, its scrap is 10,000, so its depreciable amount is 1 lakh. So you are to spread this amount over the life of the asset. Say life of the asset is 5 years, so every year on a simple basis we'll be charging 20,000 depreciation. So that amount that you are to record, that is called depreciation. So it is the systematic allocation of the cost less scrap of the asset over its useful life. So depreciation should reflect the pattern in which the asset is being used. मतलब depreciation ऐसा होना चाहिए जो asset की utility के साथ मैच कर सके. दैट इज़ यूजुअली हम क्या देखते हैं कि जब हमारी एसेट्स हैं व्हेन दे आर न्यू दे आर मोर यूज़फुल, क्योंकि एक तो आप उनको यूज़ कर रहे हो थ्रू आउट द टाइम पीरियड और उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा है. लेटर स्टेजेस में क्या हो जाता है कि आपकी एसेट्स में many a times you have more wear and tear, you have loss of hours because of repairs, because of the maintenance. ठीक है. और मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट बढ़ती जाती है, सो उनकी यूटिलिटी कम होती जाती है. सो मेथड जो है वो यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली ही लेना चाहिए. सो जिन एसेट्स में रिपेयर चार्जेस आर गोइंग टू बी हायर इन द कमिंग ईयर्स इन द लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट, उसमें WDV मेथड ज़्यादा सूटेबल होता है, बिकॉज लेटर ऑन कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी. सो अभी आप डेप्रिसिएशन ज़्यादा ले लो, लेटर ऑन जब आपकी रिपेयर कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी तो ओवरऑल आपका कॉस्ट कर्व जो है वो फ्लैट मैच करेगा, स्ट्रेट जाएगा. ठीक है. और अगर आपकी एसेट की रिपेयर वगैरह कॉस्ट ज़्यादा नहीं होने वाली है तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड भी ले सकते हो. देन द मेथड दैट यू अप्लाई इट शुड बी रिव्यूड. सो आपको मेथड सफिशिएंट टाइम के बाद रिव्यू कर लेना है कि जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा ठीक होना चाहिए. इट शुड, और अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, देयर माइट बी सम चेंजेस इन दी यूटिलिटी ऑफ द एसेट, उसकी यूज़ में ही चेंजेस हो गए. मान लो आप पहले से 8 आवर्स का फैक्ट्री आवर्स थे, 8 आवर्स का आपका प्रोडक्शन टाइम था पर डे. ठीक है. अब आपने क्या किया, अब आपने डबल शिफ्ट लगानी शुरू कर दी है. सो नाउ यू हैव 16 आवर्स ऑफ वर्क.
सो अब क्योंकि आप एसेट को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो जो आपका चेंज हो गया इसको यूज़ करने का पैटर्न, तो डेप्रिसिएशन में भी चेंज आना चाहिए, ठीक है। एंड देन सच चेंज शुड बी अकाउंटेड इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 8। एंट्री स्पेसिफिक वैल्यू, कई बार यहाँ पर डेप्रिसिएशन में एंट्री स्पेसिफिक वैल्यू, एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू यूज़ की हुई है। सो इट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज ऑफ द एंटिटी दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द एसेट। मतलब अगर आपको एसेट को यूज़ करना है बिजनेस में, ठीक है, तो ड्यूरिंग द यूटिलिटी टाइम, इसकी लाइफ के टाइम पे हमें इसमें कितना कैश फ्लो, कितना बेनिफिट एक्सपेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटेड वैल्यू इज कॉल्ड एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू। देन फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट शुड बी रिसीव्ड ऑन द टू सेल द एसेट और विच विल बी पेड टू ट्रांसफर अ लाइबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन। ओके, सो ये फेयर वैल्यू है कि आपकी इस एसेट की फेयर वैल्यू मार्केट में इतनी है। इम्पेयरमेंट लॉस इज द अमाउंट बाय विच द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एक्सीड्स इट्स रिकवरेबल अमाउंट। मतलब अगर आपकी एसेट का कैरिंग अमाउंट है से 20,000 एंड यू कैन sell it as a scrap for say 15,000, so you have more carrying amount, so you will be having a loss, so that is called impairment loss. Then you have plant, property and equipment, the term which we are using for this accounting standard. So these are the tangible assets which are held for use in the production. That is why in the previous slides we have said that एसेट को आपको सेल के पर्पज से नहीं रखना है। एसेट वो होती है विच इज़ टू बी यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड दीज आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर, तभी ये एसेट्स बनती हैं, ठीक है ना। सो इट डजेंट इंक्लूड एनी एसेट्स दैट आर हेल्ड फॉर सेल। तो जो अगर आपने चीज़ कोई सेल के लिए लेके रखी है तो वो एसेट नहीं मानी जाएगी। रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ द एसेट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट एंड इट्स वैल्यू इन यूज़। तो जो आप रिकवर करोगे एसेट से, रिकवर क्या करेंगे हम उसकी, या तो जो हमें इसकी यूटिलिटी मिलनी है उसको मेजर कर लो, इट्स वैल्यू इन यूज़, दैट इज़ इसकी यूटिलिटी की वैल्यू और इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। या आप इसको कितने में सेल कर सकते हो, माइनस इफ़ यू आर टू पे एनी कॉस्ट टू सेल फॉर द सेल ऑफ द एसेट। रेजिडुअल वैल्यू इज़ द अमाउंट विच इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज स्क्रैप. It is the price that you are going to recover at the time of disposal of the asset after deducting estimated cost of disposal. Useful life is the period over which the asset is expected to be used. Okay, so it can be taken in the number of years, n number of years, or it can also be taken as the number of production hours or production units, etc. So life can be translated in form of years or number of units or hours, machine hours, etc. but usually life जो है वो आप years में ही लेते हो. Now our first question in depreciation was कि आपको recognize करनी है. So what type of assets will be recognized as plant, property and equipment? क्योंकि आप पहले recognize करोगे कि हाँ ये हमारी asset है, then you will be charging depreciation. So any asset it shall be recognized as plant, property or equipment for business if it is probable that future economic benefits will flow to the entity. मतलब इस asset से हमें future में benefit मिलने वाला है. And cost of the asset can be measured reliably. So asset की cost भी एक reliable figure होना चाहिए. It should not be a subjective information. ठीक है. And sometimes your organization will be having spare parts, standby equipment, servicing equipment, so they will be recognized only when they meet the above definition. मतलब आप spare parts हैं, जैसे आपकी मशीन है, इसमें कई parts ऐसे होंगे जो बार बार चेंज करने पड़ सकते हैं, ठीक है ना। सो उन पार्ट्स को आप PPE में इंक्लूड, प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट में इंक्लूड तब करोगे व्हेन दे विल गिव यू सम बेनिफिट एंड यू कैन मेजर द कॉस्ट रिलायबली. सो अगर किसी का बेनिफिट आपको मिलने वाला है फ्यूचर में, तो आप इन पार्ट्स को प्लांट, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट की कॉस्ट में इंक्लूड कर लोगे. अदरवाइज दे विल जस्ट बी टेकन एज इन्वेंट्री. जैसे जब आप मशीन्स रखते हो, ठीक है ना, आप अपने फैक्ट्री में, सो यू माइट बी हैविंग से ऑयल एट्सेट्रा, ग्रीस रखी हुई है, या कुछ छोटे मोटे जैसे यू हैव सम काइंड ऑफ अदर स्मॉल पार्ट्स जो रूटीनली आपको चेंज करते रहना है, ठीक है, जो वियर एंड टीयर में चेंज होते रहते हैं. जैसे इंक है आपका, अगर प्रिंटिंग प्रेस है तो उसमें इंक है, इंक चेंज होती रहेगी, है ना. तो जो पार्ट्स को आपका फ्यूचर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, तो उसको आप
एसेट्स में इंक्लूड नहीं करोगे, दे वोंट बी इंक्लूडेड इन एसेट्स बट दे विल बी रेफर्ड एज इन्वेंट्रीज। आप इन्वेंट्री बोलोगे, ऑयल की इन्वेंट्री, ग्रीस की इन्वेंट्री और इंक वगैरह की इन्वेंट्री है, तो वो एसेट्स में नहीं आएंगे। एसेट्स में तब आएंगे व्हेन दे हैव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए एंड यू नो द कॉस्ट रिलायबली। ओके, सो आपका जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू नीड टू अप्लाई योर ओन जजमेंट। कई बार कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं एसेट के, सो वेदर दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ पीपीई और नॉट। तो उसमें आपको ये जो क्राइटेरिया है ना, ये जो ट्विन क्राइटेरिया, यू विल हैव टू यूज़ इट एंड यू विल हैव टू यूज़ योर ओन जजमेंट कि ये हमारा क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। नाउ देयर इज़ एन एक्सेप्शन हियर। एक्सेप्शन क्या है? दैट पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजंस, ऑल्दो दे विल नॉट गिव यू एनी बेनिफिट। ठीक है ना, आप बेनिफिट नहीं आपको मिलेगा बट स्टिल दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट्स। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, सपोज उनकी लाइफ है 5 ईयर्स, अब ये आपने सेफ्टी के लिए रखा है, इससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, बट स्टिल दीज विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट्स। ओके, नाउ वंस यू हैव डिसाइडेड या आइडेंटिफाइड कि ये हमारी एसेट्स हैं विच आर क्लासिफाइड और विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो एक बार क्लासीफाई हो गया, देन नेक्स्ट थिंग इज कॉस्ट मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन, दैट इज आपको इसकी कॉस्ट मेजर करनी है। सो कॉस्ट क्या होती है? किसी भी एसेट की कॉस्ट क्या है? जो प्राइस पे करते हैं हम उस एसेट को एक्वायर करने में, प्लस उस एसेट को यू आर टू नॉट ओनली टू बाय दैट एसेट, आपको सिर्फ वो पेपर में नहीं लेनी है, यू आर टू ब्रिंग दैट एसेट इनटू योर बिजनेस। अपने बिजनेस में लेके आओगे, उसको यूज़ की फॉर्म में लेके आओगे। ठीक है ना, सो अपने बिजनेस की प्लेस तक लाने में और यूज़ की फॉर्म में लाने में जितनी भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे इसकी कॉस्ट का पार्ट है। सो इट्स परचेज प्राइस इंक्लूडिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज़ और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, माइनस ऑफ कोर्स ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो कॉस्ट में से माइनस हो जाता है। सो नेट कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन, आपको अपनी बिजनेस की लोकेशन में और उस कंडीशन में लेके आने की इसे यूज़ कर सकें। मान लो आपने कुछ मशीन्स खरीदी, यू आर टू सेटअप दोज इन फॉर्म ऑफ अ प्लांट, कि ये कॉन्टिन्यूएशन में आपकी 4 मशीन्स हैं, ये चलेंगी। ठीक है, अब आप उनको अपने बिजनेस में लेके आओगे, सो यू माइट बी पेइंग सम कैरेज एक्सपेंसेस। ठीक है, वो कैरेज की जो भी चार्जेस हैं, वो लोडिंग के चार्जेस हैं, यहाँ ला के अनलोड कराया बिजनेस की प्लेस पे, उसके चार्जेस हैं। फिर अब आप इंस्टॉल कराने लगते हो तो इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस हैं। जब आप इंस्टॉल करने के लिए किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेते हो तो जो प्रोफेशनल और एक्सपर्ट की फ़ी है वो भी इसमें आ जाएगी। सपोज द पर्सन कम्स कि नहीं ये ऐसे नहीं बनेगा, आपको इसके लिए एक प्रॉपर सेटअप बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा ऊंचा रखना है बिल्डिंग को, तो कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क हो सकता है। तो ये सारी कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं टू ब्रिंग दैट एसेट इनटू योर प्लेस ऑफ बिजनेस एंड इनटू द फॉर्म, वो सारी इसमें आएंगी। अच्छा, अब इसमें ये कॉस्ट तो आ ही जाती है, बट देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ इंक्लूडेड, जो नॉर्मली हमें लगता है कि ये तो इसका पार्ट नहीं होनी चाहिए। वो क्या है कि जब आप बिजनेस में कोई एसेट लेके आते हो, प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट, और उसकी लाइफ के बाद उसको आपको एज अ स्क्रैप सेल ऑफ करना है, सो यू नीड टू मेंटेन योर बिजनेस प्लेस एज इट इज़। आपको अपनी साइट को रिस्टोर भी करना होगा, तभी आप नई चीज़ लेके आओगे ना, पुराना हटाना पड़ता है। सो जो आपका एस्टिमेट होगा ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द आइटम एंड रिस्टोरिंग द साइट आफ्टर इट्स यूज़, वो कॉस्ट भी इसकी रिकॉग्नाइजेबल कॉस्ट, डेप्रिशिएबल कॉस्ट का पार्ट होगी। सो ये कॉस्ट अभी इनकर नहीं हो रही है, मे बी नाउ यू आर इनकरिंग से 1 लाख, यू हैव इनकर्ड 50,000 एडिशनली, तो तुम्हारी कॉस्ट 1,50,000 हो गई। ठीक है, ये है जो आपने पे कर दी है। बट सपोज आफ्टर 10 ईयर्स जब ये एसेट आपकी यूजलेस हो जाएगी तो आपको उसे डिसमेंटल करना होगा, यू विल हैव टू सेल इट ऑफ, और आपको अपनी साइट वापस रिस्टोर ठीक करनी होगी। सपोज उस टाइम पे आपकी कॉस्ट है 10,000, सो आपकी जो टोटल कॉस्ट है एसेट की वो 1,60,000 होगी। ये 10 बाद में पे करेंगे, बट डेप्रिशिएट थ्रू आउट द लाइफ ही करना पड़ेगा। सो कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग द एसेट एंड रिमूविंग द आइटम एंड रिस्टोरिंग द साइट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। यहाँ एक चीज़ हमें ध्यान देने वाली है, बिकॉज नाउ वी आर हैविंग जीएसटी। सो जीएसटी जो हम पे करते हैं ना, इट इज़ अ सेपरेट चार्ज, बिकॉज जीएसटी
इज़ अलाउड एज अ डिडक्शन फ्रॉम योर आउटपुट जीएसटी। जो हमें जीएसटी पे करना है ना, उसमें हम इससे क्रेडिट ले सकते हैं। सो एट द टाइम ऑफ बाइंग एन एसेट इफ वी पे एनी जीएसटी, इट इज़ टेकन एज अ सेपरेट चार्ज, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, रिमेंबर इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। इसे कॉस्ट में नहीं लेना, बट बाकी सारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कॉस्ट का पार्ट है। इसे इसलिए नहीं लेते हैं बिकॉज दिस कॉस्ट इज़ रिकवरेबल। आप व्हेन यू आर सेलिंग योर आउटपुट, उस टाइम पे आपने आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और दिस यू आर टू पे टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर। सो एट दैट टाइम इफ से यू हैव कलेक्टेड 50,000 ऑफ आउटपुट जीएसटी, आपने जब ये इनपुट मतलब जब कोई चीज़ बिजनेस में खरीदी इन की, यहाँ पे आपने जीएसटी पे किया सपोज 15,000, तो ये आपका चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि रियलिटी में क्या होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर आप 50,000 में से यू विल से कि ये 15 तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ टू समवन जिससे मैंने कोई चीज़ खरीदी थी। सो इसका क्रेडिट मिल जाएगा और आपको नेट में 35,000 पे करने होंगे। सो दिस इज़ अलाउड एज अ क्रेडिट, तो इसको एज अ सेपरेट चार्ज नहीं देते हैं, इसको हम अलग ही रखते हैं। सो दिस वोंट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, दिस यू शुड रिमेंबर। सो अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए प्लांट हो या बिल्डिंग हो या कोई और एसेट, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए इफ़ यू हैव एम्प्लॉयड समवन, ठीक है, तो उनके जितने भी कॉस्ट है उनकी, that will be a part of your direct cost. Cost of site preparation, initial delivery and handling cost, installation and assembly cost, cost of testing whether the asset is working or not, professional fee. See, ये कौन सी costs हैं? These are the costs which are directly incidental to the asset. ये एसेट को बिजनेस में लाने में और उस एसेट को यूज़ करने की कंडीशन में लाने में एक्सपेंसेस है। सो दिस मस्ट बी नोन टू यू। सो यूजुअली क्या होता है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वी आर समटाइम्स आस्क्ड कि व्हाट आर द एसेट्स ऑन विच दिस standard is applicable. So applicability and exceptions, like we studied exceptions a few slides ago कि this is not applicable on the assets which are held for sale, या आपके mineral resources पर ये applicable नहीं है. So applicability and exception. Another theory question is what is the concept of cost, what is depreciable cost. So what is cost, what are its components, इसमें क्या include होगा क्या नहीं होगा. So इस पर भी एक separate theory छोटा सा question आ सकता है. So we are to understand separate components. अदरवाइज़ अगर आपको एक कंप्लीट एक शॉर्ट नोट आ जाए AS10 पर, तो आप ये सारा नहीं लिख सकते, ये बहुत बड़ा हो जाता है. तो उसमें क्या होगा, हम विल बी राइटिंग ओनली वन पैरा ऑन कॉस्ट, ओनली वन पैरा ऑन रिकॉग्नाइजेबल कंडीशंस फॉर रिकॉग्नाइजिंग एसेट्स, है ना. तो तब छोटा छोटा लिखोगे, बट इन पर एक कंप्लीट क्वेश्चन भी बन जाता है. नाउ व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट. सो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी. अगर आपने एक नई फैसिलिटी ओपन की है या एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, सो उसकी एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट है, और यू आर शिफ्टिंग योर बिजनेस और वहाँ आपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी है, और सम जनरल कॉस्ट जो आपकी जनरल ओवरहेड्स होते हैं, सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट. ये आपके डायरेक्टली राइट ऑफ होते हैं. अच्छा, इफ़ देयर इज़ अ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट. इसमें प्रॉफिट नहीं लोगे, ठीक है. अच्छा, कॉस्ट इनकर्ड इन यूजिंग और रीडिप्लॉइंग एन एसेट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दी कैरिंग अमाउंट्स. अब अगर आप पेमेंट डेफर कर देते हो, मान लो आपने एक एसेट मशीन है, यू बॉट इट फॉर 1 लाख, ठीक है, आपने 20,000 अभी दे दिया, 80,000 आपने कहा आई विल पे यू आफ्टर 1 मंथ. अब 1 मंथ बाद आप पे नहीं कर पा रहे हो, सो दैट पर्सन सेज कि ओके आई गिव यू 1 मोर क्रेडिट, से क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स, यू पे मी 10,000 एज इंटरेस्ट. अब आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो आप ये कहो जी मेरे तो टोटल एक्सपेंडिचर 1,10,000 हो गया, देन सॉरी, ये जो 10,000 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना, दिस इज़ नॉट फॉर द एसेट, ये पे कर रहे हो क्रेडिट के लिए. सो इफ़ यू आर पेइंग एनी इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द क्रेडिट पीरियड, इट वोंट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट. सो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट बहुत क्लियर पता होने चाहिए. अच्छा, कुछ और प्रोविजंस भी हैं. सब्सिक्वेंट कॉस्ट क्या होती है कि इन केस ऑफ रेगुलर मेंटेनेंस एट्सेट्रा, तो ये आपकी एसेट की कॉस्ट नहीं होती है, ये P&L में लिखा जाता है. बट अगर एसेट में कुछ पार्ट्स आप रिप्लेस करते हो, सो उनको क्या करेंगे, हम उनको कॉस्ट में इंक्लूड करें या उनको आप रिकॉग्नाइज करोगे एज एन एसेट. सो यू विल हैव टू सी. अगर तो ये रिप्लेसमेंट रिकरिंग है, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट है, मे बी आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, जल्दी जल्दी होता है, इसका मतलब यूटिलिटी कम है, तो ये आपके P&L में जाएंगे. बट अगर ऐसी कॉस्ट जो रिप्लेस हो रही हैं चीज़ें, इनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए है, इन दैट केस द कॉस्ट विल बी एडेड इन द एसेट, ठीक है.
नाउ कैरिंग अमाउंट ऑफ द पार्ट्स दैट आर रिप्लेस शेल बी डी रिकॉग्नाइज, तो जो पार्ट आप हटा दोगे उसकी कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी. जैसे वी हैड डन वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें एक मशीन खरीदी थी, ठीक है, विच इंक्लूडेड अ बॉयलर. अब बॉयलर एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है. नाउ सपोज योर मशीन इज़ गुड, बट ये जो बॉयलर है ना ये ख़राब हो गया है. मशीन है सपोज 50,000 की, जिसमें से आपका 15,000 का बॉयलर था, तो मशीन जो बाकी इसकी कॉस्ट है वो 35 है. ओके, सो इफ़ यू रिप्लेस दिस बॉयलर विद अ न्यू वन, तो नया बॉयलर आ जाएगा, वो कॉस्ट उसकी कॉस्ट रिकॉग्नाइज हो जाएगी, बट ये वाला अमाउंट फिर हमें हटाना पड़ेगा. सो इस पर जितना डेप्रिसिएशन आ गया, बाकी जो इसकी सेल प्राइस हो गई, बाकी प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड कर लोगे. सो कैरिंग अमाउंट ऑफ द पार्ट्स विच आर रिप्लेस्ड मस्ट बी डी रिकॉग्नाइज. डी रिकॉग्नाइज का मतलब है ना बुक्स में से निकाल दो. अच्छा, इफ़ एनी मेजर इंस्पेक्शन इज़ कैरिड आउट, इन दैट केस अगेन यू विल हैव टू सी द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया. मतलब ये इंस्पेक्शन जो है ये ज़रूरी है एंड इट इज़ एडिंग टू द लाइफ ऑफ द एसेट, तो यू विल हैव टू सी द क्राइटेरिया. ओके, अब एक्सचेंज अगर आप करते हैं नॉन मॉनिटरी एसेट्स के लिए, या कुछ एसेट्स आप आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो फेयर वैल्यू पर उनको रिकॉर्ड किया जाता है. सो अगर आपकी ट्रांजैक्शन में कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, या जो फेयर वैल्यू है वो रिलायबली मेजर नहीं हो सकती है, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, उसको एक्सचेंज प्राइस को अलग से आप प्रोफेशनली मेजर करेंगे, देन इट विल बी रिकॉर्डेड. ओके, सो कमर्शियल आपकी एसेट कितनी यूज़फुल है या उसका कितना कैश फ्लो है, वो अलग से उसको सॉल्व करते हैं नॉन मॉनिटरी एसेट्स में. सो सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव रिकॉग्निशन करनी होती है कॉस्ट की. ओके, नाउ द कॉस्ट इज़ द बेसिक. अब तक क्या था कि जो कॉस्ट था दैट वाज द बेसिस फॉर फर्दर अकाउंटिंग. फर्दर अकाउंटिंग आप कॉस्ट मॉडल पर करते थे, but now as per the new standard revaluation model is also available, you can use that. So revaluation model क्या कहता है कि plant property and equipment can be carried at the fair value less any subsequent accumulated depreciation and any kind of impairment losses. तो आप asset को revalue करते हो. So if you value one asset, then you will have to value all the assets of the same class. उसके बाद जो भी इसमें प्रॉफिट और लॉस आ रहा है उसको आपको रिकॉर्ड करना होगा. डेप्रिसिएशन सेपरेटली रिकॉर्ड होंगे. एंड इन केस यू फॉलो दिस रिवैल्यूएशन मॉडल, देन यू विल हैव टू रीवैल्यू योर एसेट्स एट सफिशिएंट इंटरवल्स. तो ये नहीं है कि नाउ यू वांट टू शो हायर और लोअर प्रॉफिट, तो आप अपनी एसेट्स को वैल्यू करा दो और नया वैल्यूएशन ले लो. वंस यू फॉलो दिस मॉडल, देन यू विल हैव टू फॉलो दिस year after year. So आपको maybe after 2 years or 3 years you will have to get your assets revalued and accordingly आपको इसको depreciation वगैरह भी रिकॉर्ड करना होगा. सो वेदर यू फॉलो कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, जो भी आप पॉलिसी चूज़ करते हो, इट शुड बी अप्लाइड टू द एंटायर क्लास ऑफ पीपीई. तो एक आपके जो एसेट है उसकी क्लास में जितनी भी एसेट्स आएंगे उन सब पे अप्लाई होगा. सो ऐसा नहीं है कि आपने मशीनरी रखी हुई है, सो ऑन सम पर्टिकुलर मशीनरी आप कहते हो मैं कॉस्ट मॉडल लूँगा और कुछ और पे आप कहते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल होगा. इट इज़ नॉट सो. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेज यू आइदर फॉलो कॉस्ट और रिवैल्यूएशन, बट पूरी मशीन्स के लिए फॉर ऑल द मशीन्स इन दैट क्लास आपको एक ही मॉडल लेना होगा. ठीक है, सो यू कैन चूज द पॉलिसी बट इट शुड बी सेम फॉर द एंटायर क्लास. सो अगेन अ स्मॉल थियरी क्वेश्चन कैन बी ऑन द measurement models. Now the accounting treatment of revaluation. So as per AS 10, if the assets carrying amount is increased as a result of revaluation, मतलब आपने asset का valuation fair value ज़्यादा price पे की है, so जो extra है उसे revaluation surplus लिखा जाएगा. और in case you have a loss, अगर आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो आपको उसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. या तो उसे कैंसिल करो अवेलेबल सरप्लस में से, और अगर सरप्लस नहीं है तो उसे फिर P&L में राइट ऑफ कर दो. मान लो यू हैव ओनली वन एसेट इन दैट क्लास, इट इज़ हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख. अब आप इसके जब रीवैल्यूएशन कराते हो तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. हो सकता है इसका रीवैल्यूड प्राइस जो है वह 1,50,000 आ गया, अनदर इज़ 85,000. तो 1,50,000 का मतलब प्रॉफिट, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा प्रॉफिट. सो प्रॉफिट P&L में नहीं जाता. बट अगर कम वैल्यू आती है, लॉस हो गया, अब इस लॉस का क्या करेंगे, इस लॉस को आपको अभी राइट ऑफ करना है. सो पहले आप चेक करो डू यू हैव एनी रिवैल्यूएशन रिजर्व एज एग्जिस्टिंग. अगर है तो इसे उस रिजर्व के अगेंस्ट कैंसिल करो, अदरवाइज इसे P&L में लिखो. ये हमारा जो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है वो भी यही कहता है कि एसेट्स शुड बी जो प्रॉफिट्स हैं दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन वी हैव द
अर्नड देम। ओके, सो ये जो प्रॉफिट है ये अर्न नहीं हुआ, ये सिर्फ आपने एक एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया या एसेट को रीवैल्यू किया। अर्न तब होगा जब इसकी सेल होगी। सो प्रॉफिट्स को रिकॉग्नाइज तब करते हैं जब अर्न होते हैं, तो इसे P&L में नहीं डाल सकते, रिजर्व में नहीं डालेंगे, ये रीवैल्यूएशन रिजर्व बाय नेम रहेगा। ठीक है, बट जो लॉसेज होते हैं वो हमें इमीडिएटली राइट ऑफ करने होते हैं, तो लॉस को तो अभी कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नाउ इन केस द अमाउंट इज डिक्रीज इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L, या फिर आपको बाकी और इनकम में से रिवैल्यूएशन रिजर्व में से एडजस्ट करना है। Now in respect of depreciation, the rules are that depreciation is the systematic allocation of the amount over its useful life. Okay, so what we are to remember is that components of PPE having same useful life and depreciation method can be grouped in determining the depreciation charge. तो एक जैसी assets को आप club कर देते हो, birds of a feather flock together. So depreciation for each year should be recognized in P&L unless it is included in the carrying amount of another asset. ठीक है ना? Now sometimes future benefits embodied in asset are absorbed in producing other assets. So in that case depreciation charge constitutes the part of the other asset and it is included in the carrying amount. मतलब आपकी जो एक एसेट की जो बेनिफिट्स हैं वो दूसरी किसी एसेट को प्रोड्यूस होने में यूज़ हो रहे हैं, तो आपका जो डेप्रिसिएशन चार्ज है वो वहाँ पर आपका क्लब हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। मान लो आप अपने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपने कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं वो बाय ही कर लिए, ठीक है, यू बॉट देम। अब इन जो इक्विपमेंट्स आपने बाय किए हैं ये आपके बिजनेस के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग जो आप बिजनेस में यूज़ करोगे, है ना। तो अब ये जो इक्विपमेंट्स हैं इनका जो डेप्रिसिएशन है, बिकॉज इनकी भी तो लाइफ है ना, इनका जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज कहाँ जाएगा, वो चार्ज आपकी एसेट की बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होने लगेगा, क्योंकि बिल्डिंग जो आप बना रहे हो, जो आप एक्वायर करने की जगह कंस्ट्रक्ट करा रहे हो, तो जितने भी कॉस्ट एक्सपायर हो रही है वो सब इसमें ऐड होने वाली है। ओके, अनदर थिंग इज लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेबल एसेट्स एंड दे आर अकाउंटेड सेपरेटली। ठीक है, नाउ सम अदर अमाउंट्स आर डेप्रिसिएशन मेथड। जो भी मेथड आप अप्लाई करो इट शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ द फ्यूचर बेनिफिट्स दैट यू आर गोइंग टू गेट। सेकेंड इज डेप्रिशिएबल अमाउंट। अमाउंट क्या मतलब होता है कि कॉस्ट लेस स्क्रैप। So depreciable amount of the asset is determined after deducting its residual value, that is cost less scrap. So if the residual value of the asset increases to be an amount equal to or greater than the carrying amount, in that case depreciable amount आपका ज़ीरो हो जाएगा। ये यूजुअली कब पॉसिबल होता है, व्हेन यू आर हैविंग रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू में क्या होता है कि आपकी एसेट की वैल्यू ज़ीरो कभी नहीं होती है, ठीक है, धीरे धीरे कम होने लगती है। बट मान लो उसकी स्क्रैप वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इन दैट केस क्या होगा कि इसकी डेप्रिशिएबल वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी एसेट की। सपोज़ आपने एसेट को एक्वायर किया एट द कॉस्ट ऑफ 2 लाख, अब 5 ईयर्स तक आप इसे यूज़ कर चुके हो, तो इसकी जो कैरिंग अमाउंट है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन से इसकी रिटन डाउन वैल्यू आपके पास बच रही है आफ्टर 5 ईयर्स से 10,000 और से 20,000, आपने जो भी डेप्रिसिएशन लिया हो। ठीक है, अब आप ये देखते हो कि यहाँ आके आपने इसको रिवाइज़ किया, आपने वैल्यूज़ रिवाइज़ की, तो यू फाउंड कि इसकी स्क्रैप वैल्यू तो 25,000 है। अब इसकी बुक्स में वैल्यू 20 है, 25 पे इसका स्क्रैप है, तो अब क्या ये -5 हो जाएगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट माइनस नहीं होगा। सो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका कैरिंग अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, कैरिंग अमाउंट स्क्रैप से ज़्यादा हो जाता है, स्क्रैप वैल्यू अगर बढ़ जाती है, रेजिडुअल वैल्यू जो है वो एसेट की ज़्यादा हो जाती है कैरिंग अमाउंट से, तो डेप्रिसिएशन चार्जेस ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, और रेजिडुअल वैल्यू एंड लाइफ ऑफ द एसेट शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। सो आपको रिव्यू करते रहना है कि आपके जो एस्टिमेट्स हैं वो सही हैं या नहीं। डेप्रिसिएशन पीरियड जो है इट बिगिंस व्हेन द एसेट इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ एंड इट सीजेज व्हेन द रेजिडुअल वैल्यू एक्सीड्स द कैरिंग अमाउंट, और या फिर आप अपनी एसेट को एक्टिव यूज़ से हटा देते हो, जैसे इस केस में, क्योंकि आपके जो रिटन डाउन वैल्यू है वो स्क्रैप वैल्यू से कम हो गई, स्क्रैप ज़्यादा है, अब आपको ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है, तो अब आपकी एसेट जो है वो आप इसको आप इसको हटा दोगे, डेप्रिसिएशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा, मतलब इसके आगे इसको डेप्रिशिएट नहीं करना।
अनदर इज़ कि जब आपने एसेट को साइड कर दिया, मान लो आपकी एसेट की लाइफ अभी से वैल्यू काफ़ी है, इसकी रिटन डाउन वैल्यू बुक्स में आ रही है 60,000, स्क्रैप कम है, लेकिन ये एसेट ऐसी हो चुकी है कि इट इज़ आस्किंग फॉर अ लॉट ऑफ रिपेयर और ये बार बार बंद होती है, आपको इसकी कॉस्ट बहुत पड़ रही है, तो आप क्या करोगे, इसको साइड कर दोगे कि अब ये एसेट हमारे यूज़ की नहीं रही, सो फिर आपका डेप्रिसिएशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा। सो इट स्टार्ट्स व्हेन द एसेट बिकम्स अवेलेबल फॉर यूज़। एक्चुअली यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है वो डिफरेंट स्टोरी है। अगर एसेट रेडी हो गई है एंड यू कैन यूज़ इट एनी टाइम, तो उस टाइम से डेप्रिसिएशन शुरू हो जाते हैं और ये तब तक चलेगा जब तक आपकी एसेट रिटायर नहीं होती एक्टिव यूज़ से, या फिर उसकी रेजिडुअल वैल्यू ज़्यादा ना हो जाए, मतलब उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू धीरे 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 कम होती जाएगी। तो जब वो स्क्रैप से भी नीचे चली जाएगी तो आप एसेट को हटा दोगे, डेप्रिसिएशन पीरियड ख़त्म। नाउ एसेट को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, उसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट वी हैव स्टडीड, एंड हाउ टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन दैट वी हैव स्टडीड। बट एक टाइम ऐसा आता है व्हेन यू डी रिकॉग्नाइज योर एसेट्स। डी रिकॉग्निशन का मतलब है कि आप अपने एसेट्स में से, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से उस एसेट को निकाल देते हो, उसे हटा देते हो। इट इज़ नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ योर पीपीई और उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगेगा। उसकी कंडीशंस क्या, आप उन्हें कब निकालते हो अपने पीपीई में से, व्हेन दीज आर डिस्पोज्ड ऑफ, या तो एसेट को सेल कर रहे हो या किसी और तरह से ख़त्म हो गई, और देयर इज़ नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। मान लो आपकी एसेट जो है ड्यू टू सम फायर इन योर फैक्ट्री एसेट ख़राब हो गई है, तो अब इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला ना, तो आपको इसे डिस्पोज ऑफ करना है। सो इन बोथ द केसेस द एसेट इज़ डी रिकॉग्नाइज। तो जब आप इसे डी रिकॉग्नाइज करते हो तो उस टाइम पर क्या करते हैं, एसेट को बुक्स में से हटाना है। सो जितनी भी उसकी बुक वैल्यू हो, मान लो एसेट की बुक वैल्यू जो है आपके पास है 50,000, एंड अब आपको लगता है कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो यू डी रिकॉग्नाइज, आप इसे हटा देते हो। देन लेटर ऑन आप इसे सेल कर देते हो उसे 20,000 पे, तो अब ये 30 बैलेंस नहीं है। जितना भी प्रॉफिट और लॉस है इट इज़ रिकॉर्डेड इन द P&L, तो ये प्रॉफिट और लॉस P&L में चला जाता है, ठीक है। और जो भी गेन है अगर आप उसे अर्न कर लेते हो, अर्न करने का मतलब एक्चुअल सेल हो जाती है, तो उसको आप P&L या रिजर्व में डाल देते हो। ओके, नाउ वाइल मेकिंग द स्टेटमेंट्स, हमें क्या क्या चीज़ें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखानी है। विल हैव टू एक्सप्लेन द मेजरमेंट बेसिस, कि हमने किस तरह से अमाउंट्स को मेजर किया है, कॉस्ट कैसे आई है, कैरिंग अमाउंट कैसे आया है, स्क्रैप कितनी थी, डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है, यूज़फुल लाइफ क्या या डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, देन व्हाट इज़ द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आपको ये भी शो करना होगा। एंड देन यू विल हैव टू रिकनसाइल द अमाउंट्स, मतलब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपने एसेट्स के अमाउंट्स को दिखाना पड़ता है कि बिगनिंग ओपनिंग बैलेंस से वो एंड तक कैसे आए। सो यू आर टू शो द एसेट्स विच यू आर होल्डिंग फॉर सेल, जितने आपने एक्विजिशंस किए जो इंक्रीज और डिक्रीज हुई ड्यू टू रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन एंड नेट एक्सचेंज डिफरेंसेस, सो ऑल द अमाउंट्स मस्ट बी शोन through the disclosures. And apart from this, if there are any kind of restrictions regarding the title or use of the asset, कोई सिक्योरिटी में दे रखी है एसेट, आपने कोई लोन लिया, आपने अपनी मशीन उसमें सिक्योरिटी में दे दी, तो वो आपको डिस्क्लोज करना है। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज्ड इन कैरिंग अमाउंट एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, then amount of contractual commitments, amount of compensation from the third party if the asset is impaired, lost or given up. So ये सारे other disclosures हैं वो आपको show करने होते हैं। So again a small question can come in the disclosures, but अगर सिर्फ AS10 पे सिर्फ short note आता है तो in that case we don't need to show all these points। अगर आपको पूरा AS10 लिखना है तो ये सारे point नहीं लिख सकते, ये तो itself में एक short note है। So अगर पूरा लिखना है तो आपको सिर्फ लिखना होगा दैट डिस्क्लोजर्स रिक्वायर द बिजनेस टू शो द कैरिंग कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड द मेथड, ऐसे करके थोड़ा सा बताना होगा फिर, ठीक है। देन देयर आर सर्टेन एडिशनल डिस्क्लोजर्स ऑल्सो इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन, कि आपने रिवैल्यूएशन कब किया, हु वाज द वैल्यूअर, ओके, देन द कैरिंग अमाउंट कितना था, कॉस्ट मॉडल में क्या है और रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या चेंजेस आए, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है, डेफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपको शो करनी है। देन कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग, सो इट ऑल्सो सेज दैट इफ़ योर एसेट इज़ हैविंग सेपरेट कंपोनेंट्स विच आर हैविंग डिफरेंट यूजफुल लाइफ्स, देन वी शुड फॉलो कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग। जैसे मान लीजिए आपका ट्रैवल टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है, ठीक है, आपने कार्स जीप वगैरह खरीदी हुई हैं। अब कार में एक कार इटसेल्फ एक एसेट है, बट उसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है उसकी लाइफ कार से अलग हो सकती है।
एंड मैनी अ टाइम्स जब आपकी कार ज़्यादा चलती है तो इंजन आपको रिप्लेस कराना पड़ सकता है. सो ये एक कंपोनेंट है विच इज़ हाईली एसेंशियल एंड इट कैन बी रिकॉर्डेड एज अ सेपरेट एसेट. सो आपको जो भी कंपोनेंट्स हैं जिनकी सब्सटेंशियल वैल्यू है दे शुड बी रिकॉर्डेड एज सेपरेट एसेट्स, और उनको आपको अलग से रिकॉर्ड करना है, डेप्रिशिएट करना है. सो दे शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड. सो other mandatory requirements of your companies act should also be followed as per the rules. So I hope this complete AS10 is clear to you. जो इसमें छोटे छोटे पार्ट्स हमने समझे हैं, जैसे what are the assets to be included in PPE, या रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये एसेट रिकॉग्नाइज होगी और ये नहीं होगी. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉस्ट, cost and its components, what is included in the cost, what is not included in the cost. Another is the, in case of this depreciation standard, we are to consider applicability. ये आपका कहाँ applicable नहीं है, ठीक है. एक्सेप्शंस, मतलब एप्लीकेबिलिटी क्या है और एक्सेप्शंस क्या हैं इस स्टैंडर्ड की, दीज यू आर टू रिमेंबर. उसके बाद डिस्क्लोजर के प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या क्या डिस्क्लोज करना है. देन अनदर इज डी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ठीक है. सो ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं 2-3 मार्क्स के. सो सेपरेटली इनको लर्न करना है, और पूरे AS10 में फिर यू मे बी हैविंग अ स्मॉल पैरा फॉर ईच ऑफ दीज. Okay, so you are to prepare a note for this chapter. So I hope this AS10 is clear to you. So stay learning and practicing. Stay happy. Thank you.